ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 16 ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਪੀਸੀਐਸ, ਐਸਐਸਸੀ, ਸੀਜੀਐਲ, ਸੀਐਚਐਸਐਲ ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ 14, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਡੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ। 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਮੋਨੀਆ ਡੇ। ਨਿਮੋਨੀਆ ਡੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਡੇ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਡੇ ਵੀ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਕਿਨ ਬੋਂਡ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਊ ਟੂ ਬੀ ਅ ਰਾਈਟਰ, ਹਾਊ ਟੂ ਬੀ ਅ ਰਾਈਟਰ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅ ਸੌਂਗ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਹੋਪ ਔਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 100 ਬੁੱਕਸ ਇਹ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੀਸੈਂਟ ਦੀ ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੇਟੀਐਮ। ਪੇਟੀਐਮ ਦੁਆਰਾ ਪੇ ਆਊਟ ਲਿੰਕਸ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਟੀਐਮ ਦੁਆਰਾ ਪੇ ਆਊਟ ਲਿੰਕਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ HDFC ਬੈਂਕ। HDFC ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਰਟ ਹਬ ਮਰਚੈਂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ, ਸਮਾਰਟ ਹਬ ਮਰਚੈਂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ 3.0 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ HDFC ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀਧਰ ਜਗਦੀਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CEO ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ MD ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਦਿਤਿਆ ਪੁਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਦਿਤਿਆ ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਸ਼ੀਧਰ ਜਗਦੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਦਿਤਿਆ ਪੁਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਦਿਤਿਆ ਪੁਰੀ ਹੀ ਐਸੇ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ MD ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਦਿਤਿਆ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਥੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਦਿਤਿਆ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੈਂਬਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆ ਏਸ਼ੀਆ ਰੀਜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਲੇ ਗਰੁੱਪ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੈਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਵਰਨਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਝੀ ਭਿੰਤ ਨਾਮ ਦੀ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜੇਂਦਰ ਦਾਦਰਾ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਦਾਰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਸੋਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਡਰੋਨ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਅਰਪੀਕ ਡਰੋਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੋਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ। ਚੈਨਮੈਂਗ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਲੋਜ਼ੇਨ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, FAO। ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਫੂਡ ਕੋਆਲੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫੂਡ ਕੋਆਲੀਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕਿ COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੈਕਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਨਗੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
75th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 75 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਇਨ ਕਮੈਮੋਰੇਟਿਵ ਕੋਇਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੋਮ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੂਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਰੋਮ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਿਊ ਡੋਂਗਿਊ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਲਵੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਵਾਰਡ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੁਆਰਾ। ਦਿੱਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਏ ਨੇ? ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਬੈਸਟ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਲ ਫॉर ਦੀਵਾਲੀ ਕੈਂਪੇਨ। ਲੋਕਲ ਫॉर ਦੀਵਾਲੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ? ਤਾਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਲੋਕਲ ਫॉर ਦੀਵਾਲੀ ਕੈਂਪੇਨ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਿਮਿਲਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਟਫਲਿਕਸ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਹੌਟਸਟਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਿੰਨਾ ਲਵੇ ਹੈ? ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਲਵੇ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਦਕਰ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਦਕਰ ਦੇ ਲਵੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 70th ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਏਸ਼ੀਆਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਏਸ਼ੀਆਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਏਸ਼ੀਆਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਿਟ 17th ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਿਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਏਸ਼ੀਅਨ ਦਾ 37th ਸਮਿਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵੀਅਤਨਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਕੈਪੀਟਲ ਹਨੋਈ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਡੋਂਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। रशिया द्वारा पीस डील साइन करवाई गई। रशिया द्वारा एक पीस डील साइन करवाई गई आर्मेनिया और अजरबेजान दे विच। आर्मेनिया और अजरबेजान ये दो ऐसी कंट्रीज़ ने जिन्हां दे विच नगोर्नो काराबाख रीजन दे लई लड़ाई है। जिस तरीके नाल अपनी पंजाब अगर लगाइए इंडिया पाकिस्तान की कश्मीर दे रिलेटेड लड़ाई है, सिमिलर तरीके नाल आर्मेनिया और अजरबेजान की इन्हां चीज़ों के लिए लड़ाई सी। ठीक है। इस दे लई पीस डील साइन करवाई है रशिया ने। ठीक है। कैपिटल इंपोर्टेंट बनेगी आर्मेनिया दी येरेवन आर्मेनिया दी कैपिटल है और अजरबेजान दी कैपिटल है बाकू। अजरबेजान दी कैपिटल बाकू। नेक्स्ट है सेकंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो। वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो है जिहड़ा दूसरा कित्थे ऑर्गेनाइज किया गया? वुहान चाइना दे विच। वुहान चाइना दे विच वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो का दूसरा एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है जी। इस सिमिलर तरीके अगर गल करिए डिफेंस एक्सपो की, तो लखनऊ यूपी के ऑर्गेनाइज किया गया सी। 11th एडिशन सीगा डिफेंस एक्सपो का। लखता सेंटर की गल करते हैं तो टॉलेस्ट बिल्डिंग है रशिया की। लखता सेंटर रशिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। इस अगर रशिया की ही नहीं यूरोप की भी, रशिया है जो यूरोप कॉन्टीनेंट के मन्या जाता है, तो यूरोप कॉन्टीनेंट की भी टॉलेस्ट बिल्डिंग है जो कि सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के विच है। इसनूं एम्पोरी स्काई स्क्रैपर अवार्ड दिता गया। बहरेन के प्राइम मिनिस्टर शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, इन्हां दी रिसेंटली डैथ हो गई है। यह नाम इंपोर्टेंट बनेगा क्योंकि ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर सीगे। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर सीगे किसी भी गौरमेंट के पूरी दुनिया के विच। बेसिकली अगर गल करिए 1970 के विच ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ बन गए सी और तकरीबन अगर देखा जाए तो 50 साल एज ए प्राइम मिनिस्टर रहे ने बहरेन। बहरेन कैपिटल इंपोर्टेंट बनेगी मनामा। इंडियन आर्मी गिफ्टेड 20 fully trained military horses and 10 mine detection
डॉग्स टू बांग्लादेश आर्मी। इंडिया ने की करा बांग्लादेश आर्मी नू हॉर्सिस प्रोवाइड किए ने, फुली ट्रेंड मिलिट्री हॉर्सिस और डॉग्स। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा द्वारा सेचा समाधान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई फार्मर्स के लिए। IPL की गल करते हैं। IPL ਨੂੰ 9ਵੀਂ टीम दी जा रही है अहमदाबाद गुजरात। IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ डिस्कस किया कुछ दिन पहले कि IPL ਨੂੰ मुंबई इंडियंस द्वारा जितया गया 5वीं बार। 13 एडिशन हो चुके हैं IPL के। 13वां एडिशन UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ऑर्गेनाइज किया गया। तो उस दे विच टोटल 8 टीम्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ पार्टिसिपेट करदियां ਹੁੰਦੀਆਂ ने। तो इस नैक्सट IPL तो 9वीं टीम भी अनाउंस की जा रही है अहमदाबाद गुजरात तो। उड़ीसा गौरमेंट द्वारा फिश नू एज ए न्यूट्रेंट ऐड किया गया आंगनवाड़ी डाइट के विच। जिहड़े आंगनवाड़ियां हुंदियां ने उन्हां दे विच फिश नू ऐड किया गया एज ए न्यूट्रेंट। किहड़ी सरकार द्वारा? उड़ीसा द्वारा। क्वेश्चन इस तरीके नाल पूछा जाएगा कि किहड़ी सरकार द्वारा फिश नू एज ए न्यूट्रेंट ऐड किया गया? उड़ीसा गौरमेंट। मणिपुर द्वारा अमूर फाल्कॉन्स एक बर्ड ने जिहड़े कि माइग्रेटरी बर्ड्स ने। ये माइग्रेट करते हैं बेसिकली साइबेरिया तो साउथ अफ्रीका। रस्ते दे विच ये मणिपुर और नागालैंड दे विच रुकते हैं। इंडिया की अगर आप गल करिए तो इन्हां दे लई नवे रूल्स अनाउंस किए हैं प्रोटैक्शन के लिए। इंपोर्टेंट ने क्योंकि ये सब तो ज़्यादा लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी रूट फॉलो करते हैं। पूरा का पूरा अरेबियन सी ये ट्रैवल करते हैं, माइग्रेट करते हैं। अमूर फाल्कन्स। नैक्सट आप डिस्कस करांगे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड। आप स्पोर्ट्स अवार्ड के अर्जुन अवार्ड डिस्कस किए। उस तो बाद आपने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी डिस्कस किए, द्रोणाचार्य अवार्ड डिस्कस कर ले। हुण आप डिस्कस कर रहे हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड। इंपोर्टेंट रहेंगे। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड की गल करते हैं। सब तो पहले यंग टैलेंट के लिए, यंग टैलेंट नूं ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ और उसनूं भरपूर बनाने के लिए 2 इंस्टीट्यूट्स ਨੂੰ अवार्ड दिता गया सी, लक्ष्य इंस्टीट्यूट और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। लक्ष्य इंस्टीट्यूट एंड आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। इस तो इलावा स्पोर्ट्स ਨੂੰ एनकरेजमेंट देने के लिए, एनकरेजमेंट करने के लिए ONGC ਨੂੰ, ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन। रिसेंटली ONGC विदेश के आप नवे MD भी डिस्कस किए थे, अक्षय कुमार सिंह उन्होंने नाम से। ठीक है। इस तो इलावा एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट्स परसन ਨੂੰ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए एयरफोर्स स्पोर्ट्स सेंट्रल बोर्ड ਨੂੰ अवार्ड दिता गया। स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट के लिए अवार्ड दिता गया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ਨੂੰ अवार्ड दिता गया। नैक्सट चलते हैं अज के फर्स्ट क्वेश्चन के वाल। काफ़ी इंपोर्टेंट न्यूज़ ने, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ ने, एक करके सारी न्यूज़ में डिस्कस करांगे। सब तो पहले वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जिस दिन अपने दिवाली ऑब्जर्व की, तो 14 नवंबर को ही वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी। इस तो इलावा काफ़ी इंपोर्टेंट दिन जोड़े ऑब्जर्व किए गए डिस्कस करांगे। सब तो पहले 13 नवंबर को आयुर्वेदा डे ऑब्जर्व किया गया। इस साल 13 नवंबर को आयुर्वेदा डे ऑब्जर्व किया गया। बेसिकली ये हर साल धनवंतरी जयंती या जिसनों आप धनतेरस के नाम तो जानते हैं, धनतेरस वाले दिन इसनों आयुर्वेदा डे को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है। इसनों 2016 के विच शुरू किया गया सी। इस साल आप कह सकते हैं कि इसका 5th एडिशन सेगा। ठीक है। जिसकी थीम रही पोटेंशियल रोल ऑफ आयुर्वेदा इन मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। पोटेंशियल रोल ऑफ आयुर्वेदा इन मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। इस दिन को ऑब्जर्व किया गया 2016 तो ऑब्जर्व किया जा रहा है। 13 नवंबर को इस साल ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी, याद रखना है। दूसरा 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे डिस्कस किया। इस दे नाल ही चिल्ड्रनस डे PSPCL के एग्जाम के पूछा गया सी। एक शिफ्ट के PSPCL के एग्जाम के चिल्ड्रनस डे पूछा गया सी कि किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इस दे नाल ही वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी पूछा गया सी। दोनों क्वेश्चन एक सिंगल एग्जाम के 14 नवंबर ही आंसर सीगा पूछा गया। क्यों पूछा गया? क्योंकि ये इस करके पूछा गया कि बच्चे सोचेंगे कि चिल्ड्रनस डे हर एक को पता होगा, 14 नवंबर टिक ला देंगे। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके नाल पूछा गया कि सोचेगा कि इसका आंसर 14 का हो चुका है, तो यह आंसर 14 नहीं होएगा। इस तरीके नाल ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया सी PSPCL के एग्जाम के। तो 14 नवंबर
चिल्ड्रनस डे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहर लाल नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी के लिए ऑबजर्व किया जाता है। ठीक है, इसनों यूनाइटेड नेशनस द्वारा 1964 के शुरू किया गया सी इन्हां दी डेथ तो बाद। ठीक है, 1889 के इन्हां दा बर्थ होया सी, 1964 के इन्हां दी डेथ हुई सी एज ए प्राइम मिनिस्टर, और उस तो बाद यूनाइटेड नेशनस द्वारा इस दिन को ऑबजर्व करना शुरू किया गया सी। 15 नवंबर ਨੂੰ वर्ल्ड डे ऑफ रिमैंबरेंस ऑफ रोड ट्रैफिक विक्टिम्स ऑबजर्व किया गया। यह दिन हर साल नवंबर के तीसरे संडे ਨੂੰ ऑबजर्व किया जाता है। नवंबर के तीसरे संडे ਨੂੰ ऑबजर्व किया जाता है। इस साल इसनों 15 नवंबर ਨੂੰ ऑबजर्व किया गया। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इनसोमिया आर्मी स्टोरीज। इनसोमिया आर्मी स्टोरीज, इस बुक ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ द्वारा लिखिया गया। इस बुक के ऑथर ने रचना बिष्ट द्वारा एक बुक लिखी गई इनसोमनिया आर्मी स्टोरीज, रचना बिष्ट द्वारा। इस तो इलावा होर भी काफ़ी डिफरेंट बुक्स ने, डिटेल से भी डिस्कस करते हैं। सब तो पहले वाइस प्रेजिडेंट एम वेंकैया नायडू, इंडिया के वाइस प्रेजिडेंट एम वेंकैया नायडू द्वारा एक बुक लॉन्च की गई थाउसमी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण। लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण दिवाली के कह सकते हैं मौके पर इस बुक को लॉन्च किया गया वाइस प्रेजिडेंट एम वेंकैया नायडू द्वारा, और जिस बुक को लिखा गया रलाबंदी श्री रामा चक्रधर। थोड़े ट्रिकी नेम्स ने, रलाबंदी श्री रामा चक्रधर प्लस अमारा शारदा दीप्ति। इंपोर्टेंट सिर्फ ये चीज़ ज़्यादा जरूरी है याद रखनी है कि इसको लॉन्च किन्ना ने किया है। ठीक है, वाइस प्रेजिडेंट एम वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किया गया। सोनू सूद, एक्टर ने सोनू सूद, इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है आई एम नो मसीहा। बेसिकली इन्होंने कोविड-19 के दौरान जोड़े काम किए ने, लोगों को अपने घरे पहुँचाने में हेल्प की सी, उस स्टोरी के उत्ते ही इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है आई एम नो मसीहा। ठीक है, जिसनों को ऑथर किया गया मीना अय्यर द्वारा इस बुक को इन्हों के नाल मिल के लिखा गया। ठीक है, मसीहा तो ही सूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के उत्ते भी एक बुक आई सी, मसीहा के रिलेटेड ही कुछ नाम से उसका, उस बुक को किन्होंने लिखा सी तवलीन सिंह ने। ठीक है जी, इस तरीके से को रिलेट करते चलिया करो, ईजिली याद रहेंगे। नैक्सट चलते हैं, एक होर बुक बोसकियाना बुक पोएट गुलजार। बेसिकली जोड़े गुलजार ने बॉलीवुड के काफ़ी फेमस नाम है गुलजार, इन्हों द्वारा काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग्स लिखे जाते हैं, लिरिसिस्ट ने, पोएट ने, फेमस पोएट ने, हिंदी पोएट ने। ठीक है, इन्हों का जोड़ा घर है, इन्हों के घर में बोसकियाना कहा जाता है, इन्हों का जोड़ा घर है उसमें बोसकियाना कहा जाता है, और इन्हों की लाइफ स्टोरी के उत्ते एक बुक लिखी गई बोसकियाना, जिसनों कंपाइल और एडिट किया गया यशवंत व्यास द्वारा कंपाइल और एडिट किया गया, और ये नाम भी इंपोर्टेंट बन रहा है, इस करके आप डिस्कस कर रहे हैं कि इसनों पब्लिश किया जाएगा राधा कृष्णन प्रकाशन द्वारा इसनों पब्लिश किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है इस नाम को, इस करके आप डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है इतों क्वेश्चन पूछा जाए कि राधा कृष्णन प्रकाशन द्वारा इसनों पब्लिश किया गया, लिखा गया यशवंत व्यास द्वारा, पोइट का नेम गुलजार बोसकियाना। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज ए चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द एक्टिंग US डिफेंस सैकटरी क्रिस मिलर। बेसिकली की होया कि अगर आप गल करते हैं USA के डिफेंस सैकटरी की, USA के जो डिफेंस सैकटरी से वो सी मार्क एस्पर। काफ़ी नाम आप डिस्कस किया हुआ है। तो इस टाइम अगर आप गल करिए प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है, इलैक्शंस हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं, पर हजे ओथ नहीं ना लई, हजे तक डोनाल्ड ट्रंप एज ए प्रेजिडेंट ने, तो इन्होंने की करा, इन्हों फायर किया, इन्हों की नौकरी खत्म कर दी है। तो एक्टिंग US डिफेंस सैकटरी अपॉइंट किए गए हैं क्रिस मिलर। अपने लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने कि इन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ कौन अपॉइंट किए गए? क्रिस मिलर के चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट किए गए हैं काश पटेल। अपने लिए क्यों इंपोर्टेंट बने? क्योंकि इंडियन ओरिजिन ने, इस करके नाम इंपोर्टेंट बनेगा। ठीक है, जिस तरीके से अपने कमला हैरिस का नाम ज़्यादा इंपोर्टेंट किया सी, क्यों? क्योंकि वह इंडियन ओरिजिन वाइस प्रेजिडेंट बने ने और फर्स्ट वूमेन वाइस प्रेजिडेंट बने ने USA के। तो काश पटेल चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट किए गए हैं क्रिस मिलर के।
इस तो इलावा बाकी ऑप्शन से रिलेटेड भी इंटरेस्टिंग न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। सब तो पहले अभिजीत गुप्ता, चिल्ड्रन डे लंघ के गया तो चिल्ड्रन की कुछ अचीवमेंट्स ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स डिस्कस करांगे। सब तो पहले अभिजीत गुप्ता, अभिजीता गुप्ता 7 साल की एक लड़की है ये, ठीक है। इसनू वर्ल्ड यंगेस्ट ऑथर बनाया गया, वर्ल्ड दी यंगेस्ट ऑथर नामित किया गया इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा, और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा तो इन्हों ग्रैंड मास्टर ऑफ राइटिंग भी दे नाम नाल नामित किया गया। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन्हों ग्रैंड मास्टर ऑफ राइटिंग कहा और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन्हों रिकोगनाइज किया एज ए वर्ल्ड यंगेस्ट ऑथर, क्योंकि सिर्फ 7 साल की उम्र के इन्होंने बुक लिखी है हैप्पीनेस ऑल अराउंड, हैप्पीनेस ऑल अराउंड, ठीक है। 7 साल की लड़की है अभिजीता गुप्ता। नेक्स्ट है सादत रहमान, सादत रहमान बांग्लादेश तो बिलोंग करते हैं। इन्हों इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ दिता गया, इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ दिता गया किस दे लई, बेसिकली बुलिंग अगर आप गल करते हैं जी स्कूल्स वगैरह दे विच या कॉलेजेस वगैरह दे विच बुलिंग की जाती है यूथ दे नाल, तो वह बुलिंग नूं रोकण दे लई, बुलिंग नूं रोकण दे लई इन्हां द्वारा एक एप्लीकेशन बनाई गई सी। उस एप्लीकेशन नूं बनाउण दे लई इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ सादत रहमान बांग्लादेश तो बिलोंग करते हैं, या रखना इन्हों दिता गया। प्रांजल, प्रांजल की गल करना है, 11 साल का एक लड़का है प्रांजल जो कि कानपुर तो बिलोंग करता है, कानपुर तो बिलोंग करता है प्रांजल। इसने की करा कि यूनीक रोबोट बनाया है जिहड़ा कि हवा के विचों पोलूटेंट्स नूं रिमूव कर सकता है, सोख सकता है, ठीक है। एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। अगर आप गल करिए, काफ़ी अच्छी लगी मैनूं न्यूज़ कि 11 साल का लड़का पॉल्यूशन नूं रोकण दे लई इन्ना कुछ सोच रहा। उसने एक रोबोट बनाया अपने क्लासमेट्स नाल मिल के ताकि हवा दे विचों पोल्यूशन नूं कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। अगर इस तरीके के इनिशिएटिव नूं आपां हायर लैवल ते लेके जाने तो काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो इस दे लई न्यूज़ इंपोर्टेंट रहेगी, याद रखनी है, प्रांजल, कानपुर और रोबोट। इस तो इलावा अतुल कुमार झा, अतुल कुमार झा वाइस एडमिरल ने, फ्लैग कमांडिंग ऑफिसर ने चीफ ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड दे, ठीक है। अगर आप नेवी की गल करते हैं तो नेवी के ईस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग कमांडिंग ऑफिसर ने अतुल कुमार झा। इन्हों द्वारा प्रेरणा स्थल डेडिकेट किया गया टू द वर्क फोर्स ऑफ नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के एक प्लेस नूं एज ए प्रेरणा स्थल डेडिकेट किया वर्कर्स नूं, वर्कर्स ऑफ नेवल डॉकयार्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च इनिशिएटिव डोर स्टेप सर्विस फॉर सबमिशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू पोस्टमैन। बेसिकली डोर स्टेप सर्विस लॉन्च की गई है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाने के लिए पोस्टमैन द्वारा। किन्ना द्वारा लॉन्च की गई है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा। किहड़े बैंक द्वारा इस इनिशिएटिव नूं लॉन्च किया गया? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा इस इनिशिएटिव नूं लॉन्च किया गया, ठीक है जी। अच्छा, इंपोर्टेंट एक चीज़ होर बनेगी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का हैडकुआटर कित्थे है? तो न्यू दिल्ली दे विच है। पेटीएम पेमेंट बैंक का हैडकुआटर कित्थे है? नोएडा दे विच है। ये थोड़ा डिफरेंट है, इस करके ज़्यादा पूछा जाता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक का हैडकुआटर कित्थे है? नोएडा दे विच। एयरटेल पेमेंट बैंक का हैडकुआटर कित्थे है? न्यू दिल्ली दे विच। इत्थे कन्फ्यूजन हो सकती है। एयरटेल पेमेंट बैंक का हैडकुआटर न्यू दिल्ली दे विच है और जियो और फिनो पेमेंट बैंक का हैडकुआटर मुंबई दे विच है। जियो और फिनो पेमेंट बैंक का हैडकुआटर कित्थे है? मुंबई दे विच। इस तो इलावा अगर व्हाट्सएप की गल करते हैं, व्हाट्सएप द्वारा अपनी पेमेंट सर्विस शुरू की गई है। पेमेंट सर्विस शुरू करने के लिए इसने की कराया 5 बैंक्स के नाल, 5 इंडियन बैंक्स के नाल एग्रीमेंट साइन किया है। पहले इसनूं अप्रूवल दी गई सी, NPCI द्वारा अप्रूवल दी गई है। इस तो इलावा 5 किहड़े बैंक सीगे? एक तो सीगा जियो पेमेंट बैंक, इस तो इलावा SBI, एक्सिस, HDFC और ICICI, ठीक है जी, याद रखने हैं। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन विल सेट अप अ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया? केड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर ओपन करेगी इंडिया दे विच? ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर कौन ओपन करेगी? WHO ओपन करेगी, ठीक है। ट्रेडिशनल मेडिसिन का की मतलब है कि आयुर्वेदा हो गया, यूनानी हो गया, इन्हां चीज़ों को यूज़ किया जाएगा, इन्हां चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। इस लिए एक सेंटर ओपन किया जा रहा है WHO द्वारा इंडिया दे विच।
ठीक है। बेसिकली जी अगर आप इस न्यूज़ की गल करते हैं अनाउंसमेंट की गई सी आयुर्वेदा डे वाले दिन, इंपॉर्टेंट रहेगा याद रखने। अच्छा WHO की अगर आप गल करिए, अच्छा पहले आयुष की गल करते हैं तो आयुष मिनिस्टर डिस्कस कर लेने श्रीपति यसो नायक ने, आयुष मिनिस्टर। इस तो इलावा अगर आयुष मिनिस्ट्री की ही गल करते हैं तो श्रीपति यसो नायक नॉर्थ गोवा तो लोक सभा MP ने। WHO की गल करते हैं तो जनेवा स्विट्जरलैंड के हैडकुआटर है। टैड्रोस एडानोम WHO के हैड ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हैड ने। इस तो इलावा WHO रिलेटेड एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि USA द्वारा अनाउंस किया गया कि WHO तो ये अपने आप को वापस लै लेंगे, WHO तो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा याद रखना। 2021 इस लिए अनाउंस किया गया, जिस तरीके USA रिसेंटली पैरिस एग्रीमेंट के विचों बाहर होया सी। बाकी ऑप्शंस की अगर गल करिए, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इन्होंने रिलेटेड और डिस्कस करते हैं। सब तो पहले FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की जी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, जिस दे इन्हों द्वारा की गई कमेटी बनाई गई है, फूड सेफ्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी। फूड सेफ्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है ताकि फूड सेफ्टी एमरजेंसीज़ को कंट्रोल किया जा सके, मैनेज किया जा सके। अंडर चेयरमैन का नाम इंपॉर्टेंट बनेगा, चेयरमैनशिप ऑफ अरुण सिंघल, जो कि FSSAI के ही CEO ने। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के हैडकुआटर है, इसके CEO अरुण सिंघल ने और इन्हों कमेटी का हैड अपॉइंट किया गया। ठीक है जी। IRCTC इंडियन रेलवेज की अगर आप गल करते हैं, IRCTC यह शुरू करन जा रही है भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा। पहला क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है कि किस एरिया की जी कह सकते हैं कि यात्रा शुरू की जा रही है, या फिर किस एरिया की एज ए टूरिस्ट स्पॉट मान के उसको टूरिज्म इंक्रीज करने के लिए शुरू किया जा रहा है, तो दक्षिण। ठीक है, डायरैक्शन याद रखनी है, दक्षिण भारत यात्रा। अगर आप गल करते हैं दूसरी चीज़ कित्थों शुरू की जा रही है, हैदराबाद और सिकंदराबाद तो, हैदराबाद और सिकंदराबाद तो इसको शुरू किया जा रहा है। अंडर थीम इंपॉर्टेंट बनेगी शो इंडिया टू इंडियंस, शो इंडिया टू इंडियंस। इस तो इलावा रेलवे मिनिस्टर का नाम याद रखना है, पीयूष गोयल ने। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल राज्यसभा MP ने महाराष्ट्र तो। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं इंडियन रेलवेज की, रेलवे बोर्ड के CEO और या कह सकते हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन ने, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन ने, VK यादव। इन्हों का नाम भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने की करया कि सेंटर ऑफ डिजिटल एंटरप्राइजेज जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड बिजनेस स्कूल का हिस्सा है, इस दे नाल पार्टनरशिप की है। पार्टनरशिप क्यों की है, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वर्ल्ड की पहली एपैक डिजिटल सस्टेनेबिलिटी इंडैक्स को लॉन्च करने के लिए आप डिफरेंट इंडैक्स डिस्कस किए हैं, तो एक इंडैक्स शुरू किया जाएगा डिजिटल सस्टेनेबिलिटी इंडैक्स। इसनू बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा ऑकलैंड बिजनेस स्कूल द्वारा प्लस TCS द्वारा। ठीक है, TCS ने इसके लिए पार्टनरशिप की है इसनू डेवलप करने के लिए। RBI की गल करते हैं, RBI ने 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है PNB नू, पंजाब नैशनल बैंक नू। पंजाब नैशनल बैंक है जिहड़ा 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है। रिसेंट पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि रिसेंटली 1 करोड़ की पेनल्टी किहड़े बैंक नू लगाई गई है, फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द पेमेंट एंड सैटलमेंट सिस्टम एक्ट। इस तो इलावा PNB का हैडकुआटर पूछा जा सकता है, न्यू दिल्ली के विच है। PNB SS मल्लिका अर्जुन राव CEO ने। ठीक है। अच्छा PNB अगर आप गल करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टैटिक दे विच कि PNB के ऐसे किहड़े फाउंडर ने जो कि रिलीजियस मूवमेंट्स के नाल जुड़े हुए हैं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और फेमस नाम है जिन्हों द्वारा PNB बैंक फाउंड किया गया सी, बनाया गया सी। ठीक है, कमेंट बॉक्स के विच नाम दसना। नेक्स्ट है हु विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द 15th ईस्ट एशिया समिट। 15th ईस्ट एशिया समिट दे विच इंडिया नू कौन रिप्रेजेंट करेगा, इंडिया नू कौन रिप्रेजेंट करेगा, सुब्रमण्यम जयशंकर, S जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, राज्यसभा MP ने गुजरात तो, राज्यसभा MP ने गुजरात तो। ठीक है जी। 15th ईस्ट एशिया समिट है, किहड़ी कंट्री इसनू कह सकते हैं होस्ट करेगी, तो वियतनाम करेगी। हमेशा याद रखना है कि जिहड़ा एशियन समिट है, ईस्ट एशिया समिट है,
और RCEP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਿਟ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਮਿਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਸਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਮਿਟ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗੀ ਉਹੀ ਇਹ ਦੋ ਸਮਿਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗੀ। ठीक है, तो वियतनाम होस्ट कर रही है, ये याद रखना है। लास्ट ईयर अगर आप गल करते हैं तो बैंकॉक थाईलैंड द्वारा इसनू होस्ट किया गया सी और इंडिया वालों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया सी। ठीक है, ईस्ट एशिया समिट है जिहड़ा इस दे विच कितनी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करदियां होंदियां ने, 18 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करदियां ने, ये याद रखनी है। ठीक है जी, इस तो इलावा याद रखना है RCEP तो लास्ट ईयर इंडिया ने अपने आप नूं बाहर कर लिया सीगा, ये भी याद रखना है। रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकनॉमिक पार्टनरशिप RCEP दी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा एट जामनगर एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एट जयपुर। दो इंस्टीट्यूट इनॉग्रेट किए गए ने, इंपोर्टेंट बन गए। एक नूं तां जामनगर गुजरात दे विच और दूसरा जयपुर राजस्थान दे विच। एक गुजरात दे विच, एक राजस्थान दे विच। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जामनगर गुजरात, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर दे विच। किन्ना द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इन्हां नूं इनॉग्रेट किया गया। किन्ना द्वारा इनॉग्रेट किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। आयुर्वेद मिनिस्ट्री आप डिस्कस कर लीए, श्रीपति SO नायक दे लवे। ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाराणसी यूपी तो लोक सभा MP ने और रिसेंटली इन्होंने वाराणसी यूपी के 600 करोड़ 14 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के लिए इनोग्रेशन प्रोजैक्ट्स नूं लॉन्च किया। ठीक है, जिस दे बारे आप डिस्कस किया, लाइट्स एंड रोड शो डिस्कस किया, जिस दे विच अमिताभ बच्चन की आवाज़ में यूज़ किया जाएगा सारनाथ वाराणसी यूपी दे विच। ठीक है जी, अज आप ऑप्शंस के बारे थोड़ा घट डिस्कस करांगे क्योंकि न्यूज़ ज़्यादा ने अपने लवे, सैशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है हु हैज़ इनॉग्रेटेड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 12 फीट टॉल जायंट एयर प्यूरीफायर इन गांधीनगर दिल्ली। गांधीनगर दिल्ली दे विच, जिहड़ा गांधीनगर गुजरात वाला नहीं है, ये गांधीनगर वो सिटी है और गांधीनगर ये एक मोहल्ला कह सकते हैं। गांधीनगर दिल्ली दे विच एक जायंट एयर प्यूरीफायर लॉन्च किया गया, 12 फीट लंबा एयर प्यूरीफायर। इसनूं गौतम गंभीर द्वारा दिल्ली तो MP ने ये गौतम गंभीर क्रिकेटर सीगे, बाद विच MP बने ने, इन्हां द्वारा लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, अच्छा इन्हां दे बारे ही अपने एक पिछले साल भी एक न्यूज़ डिस्कस की सी, 2019 दे विच अपने न्यूज़ डिस्कस की थी स्मोग टावर के रिलेटेड, कि इन्हां द्वारा ही एक स्मोग टावर भी इनॉग्रेट किया गया सी। बाद में जो कहा गया कि इंडिया का सब तो पहला स्मोग टावर कित्थे लगाया जाएगा, जो कि गौरमेंट, अगर आप गौरमेंट की गल करते हैं, सब तो बड़ा कित्थे लगाया गया सी, दिल्ली के ही लगाया जाना सी। और यह स्मोग टावर अलग सीगा जिसनूं गौतम गंभीर द्वारा ही इनॉग्रेट किया गया सी। ठीक है जी, रोहित शर्मा के बारे रिसेंटली याद रखना, हिटमैन नाम की बुक इन्हां दी रिलीज़ की गई है। नेक्स्ट चलते हैं ओंग सान सुई काई इलैक्ट किए गए ने प्राइम मिनिस्टर। इन नवे प्राइम मिनिस्टर बने ने किहड़ी कंट्री के नवे प्राइम मिनिस्टर बन गए? म्यांमार की गल करते हैं। म्यांमार कैपिटल नई पई था और करंसी इत्थे क्यात चलती है। ठीक है जी, इस तो इलावा एक होर न्यूज़ सीगी, मतलब हजे न्यूज़ प्रॉपर तरीके नाल कहांगे कि फिलीपीनस दे विच इंडिया और फिलीपीनस मिलके की कर रहे हैं, इंडिया और फिलीपीनस मिलके डील साइन करन जा रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल रिलेटेड। आप काफ़ी बार डिस्कस की है ब्रह्मोस मिसाइल, इंडिया ने रिसेंटली DRDO द्वारा टैसट फायर किए गए सी, ब्रह्मोस के नाइट वर्जन टैसट फायर भी किया गया। ठीक है, ब्रह्मोस का सक्सैसफुली लैंड वर्जन टैसट किया गया, एयर वर्जन टैसट किया गया। ब्रह्मोस ऐसी मिसाइल है जिसमें ब्रह्मोस इंडिया और रशिया द्वारा मिलके बनाया गया सी, इसे करके इसका नाम है जिहड़ा ब्रह्मोस रखा गया सी, ब्रह्मपुत्र इंडिया की रिवर और मोस्कोवा रशिया की रिवर नूं जोड़ के। ठीक है, हुण ये जिहड़ी मिसाइल है इसनूं इस दे लई एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है फिलीपीनस के नाल। फिलीपीनस नूं इस टैक्नोलॉजी नूं प्रोवाइड किया जाएगा और फिलीपीनस अगर ऐसा किया जाता तो पहली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बनेगी, पहली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बनेगी जिसनूं ब्रह्मोस मिसाइल प्रोवाइड की जाएगी इंडिया वालों। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, बाकी कंट्रीज़ की कैपिटल और करंसी डिस्कस कर लेने। सब तो पहले वियतनाम, करंसी हनोई चलती है, कैपिटल हनोई है, करंसी डोंग चलती है। फिलीपीनस मैट्रो मनीला, फिलीपीनस मनीला हैडकुआटर है, पैसो इत्थे करंसी चलती है। ADB का हैडकुआटर है फिलीपीनस मनीला दे विच।
थाईलैंड कैपिटल बैंकॉक है, करेंसी भट चलती है। भूटान कैपिटल थिम्पू है, करेंसी नगुलतरम चलती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है इंडियन नेवी द्वारा 5वीं स्कॉर्पियन सबमरीन लॉन्च की गई है वाजिर। 5वीं स्कॉर्पियन सबमरीन है इंडियन नेवी की, जो कि मैजागोन डॉक ऑफ साउथ मुंबई ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਜ਼ਾਗੋਨ ਡੌਕ ਆਫ ਸਾਊਥ ਮੁੰਬਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਯੈਸੋ ਨਾਇਕ ਦੁਆਰਾ। ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਯੈਸੋ ਨਾਇਕ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਯੈਸੋ ਨਾਇਕ, ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਯੂਸ਼ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਲਵੇ ਡਿਪਟੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਨੇਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੁਆਰਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਮੈंने ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਵੀਂ ਸਕੋਰਪੀਅਨ सबमरीन है? 5वीं ਸਕੋਰਪੀਅਨ सबमरीन है। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਜਿਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਊਥ ਮੁੰਬਈ ਮੈਗਾਜ਼ੋਨ ਡੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਯੈਸੋ ਨਾਇਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਨੇਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਫਰਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਨੇਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 75 ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 5ਵੀਂ ਇਹ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਾਲਵਰੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ INS ਕਾਲਵਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੰਡੇਰੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਰੰਜ ਸੀਗੀ ਔਰ ਵੇਲਾ ਸੀ। खंडेरी, कारंज और वेला। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, अपने लिए डायरेक्ट याद रखना कि किन्नवीं है, 5वीं सबमरीन है, नाम की है वाजिर। ठीक है, फ्रांस तो याद रखना है शक्ति, वरुण और गरुड़, तीन एक्सरसाइज होंदियां ने फ्रांस दे नाल। इस तो इलावा फ्रांस दे नाल रफाल डील बारे याद रखना है, हैमर मिसाइल बारे याद रखना है, फ्रांस तो ही लिती जाएगी। ठीक है, हैमर दे नाल ही एक होर मिसाइल सी, मेरे माइंड चो स्किप कर रही है, वो भी आप डिस्कस की सी कि फ्रांस तो ही लिती जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है होम मिनिस्टर अमित शाह होम मिनिस्टर ने इन्हों द्वारा सरहद विस्तार विकासोत्सव लॉन्च किया गया धोदो विलेज ऑफ गुजरात। कित्थे किया गया? गुजरात के बेसिकली कच्छ डिस्ट्रिक्ट दे विच धोदो विलेज है। उस विलेज दे विच सरहद विस्तार विकासोत्सव नूं इनोग्रेट किया गया अमित शाह द्वारा, होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा। गांधीनगर गुजरात तो ही लोक सभा MP ने अमित शाह। ठीक है जी। बाकी स्टेट के रिलेटेड पुरानी न्यूज़ नहीं डिस्कस करांगे क्योंकि नवी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा ने अपने लवे। डायरैक्ट नवी न्यूज़ डिस्कस करते हैं। सब तो पहले गुजरात के बारे एक चीज़ आप डिस्कस कर ली। दूसरी अगर आप गल करते हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम बनाया जा रहा है गुजरात के गांधीनगर के विच। गुजरात गौरमेंट द्वारा अनाउंस किया गया है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम कित्थे बनाया जाएगा? गांधीनगर दे विच। अच्छा, एक टॉय क्लस्टर की गल करते हो, कित्थे सीगा? करनाटका दे विच। ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना, इंपोर्टेंट न्यूज़ ने याद रखनियां ने। यूपी की गल करते हैं तो अयोध्या यूपी द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। लास्ट ईयर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया सी, इस साल कह सकते हैं कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़िया गया है। किस तरीके नाल? लाइटनिंग मैक्सीमम दियाज, सब तो ज़्यादा दिए लगाए गए, कह सकते हैं कि 5,84,000 के नज़दीक दिए लगाए गए एज द लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ ऑयल लैंप्स अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ सरयू रिवर। ठीक है जी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। लास्ट ईयर भी इन्हों का ही रिकॉर्ड से, इसनों तोड़ के लास्ट ईयर तकरीबन 4 लाख कुछ सीगे, इस साल 5,84,000 ने। याद रखनी यूपी द्वारा ही मिशन रोजगार अनाउंस किया गया। बेसिकली अगर आप पंजाब की गल करते हैं तो पंजाब द्वारा 50,000 जॉब्स अनाउंस की गई पर कड्डियां नहीं गई। ठीक है, तो सिमिलर तरीके नाल मिशन रोजगार यूपी द्वारा अनाउंस किया गया कि 50 लाख पोस्टां कड्डियां जाणगियां मार्च 2021 तक। मार्च 2021 तक 50 लाख पोस्टां नूं कड्ढिया जाएगा यूपी दे विच। हरियाणा की गल करते हैं तो हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने इन्हां द्वारा प्रोजैक्ट एयर केयर
प्रोजैक्ट एयर केयर गुरुग्राम दे विच लॉन्च किया गया। प्रोजैक्ट एयर केयर हरियाणा द्वारा एयर पोल्यूशन नूं कॉम्बैट करन दे लई गुरुग्राम दे विच लॉन्च किया गया। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल द्वारा 23 नवीं तहसीलां शुरू की गई ने 15 डिस्ट्रिक्ट्स दे विच। छत्तीसगढ़ गौरमेंट, अगर आप छत्तीसगढ़ की गल करते हैं 15 जिले ने, तो 15 जिलों के 23 नवीं तहसीलां खोलियां गई ने छत्तीसगढ़ गौरमेंट द्वारा। ये न्यूज़ इंपोर्टेंट बनेगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। अगर आप गल करते हैं हर साल जी दिवाली है वो सोल्जर्स नाल सैलीब्रेट करते हैं। इस साल इन्होंने जी दिवाली है कित्थे सैलीब्रेट की है, लौंगोवाला पोस्ट ऑफ जैसलमेर राजस्थान के जैसलमेर दे विच लौंगोवाला पोस्ट है। एक ऐसी पोस्ट है जिथे अगर आप गल करते हैं कि एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इफैक्ट है। गर्मियों के विच टैंपरेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है और सर्दियों की गल करते हैं तो टैंपरेचर बहुत ज़्यादा लो भी हो जाता है। ठीक है, तो एक ऐसी पोस्ट है जिथे काफ़ी ज़्यादा ठंड या गर्मी कह सकते होंगी है। इस साल इन्होंने सोल्जर्स के नाल दिवाली सैलीब्रेट की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नैक्सट है इंडियाज़ फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम। इंडिया का पहला सैंडलवुड यानी कि चंदन का म्यूजियम बनाया जा रहा है। ठीक है, चंदन दे यूजेस की गल करते हैं, चंदन के इंपोर्टेंस की गल करते हैं, तो इसके लिए म्यूजियम बनाया जा रहा है कर्नाटका दे विच। इंडिया का पहला सैंडलवुड म्यूजियम कित्थे बनाया जा रहा है, कर्नाटका दे विच। ठीक है, डिटेल दे विच डिस्कस करते हैं इसनूं। इस तो इलावा बाकी स्टेट्स के रिलेटेड भी न्यूज़ ने वो भी डिस्कस करते हैं। तो जिहड़ा पहला सैंडलवुड म्यूजियम है इसनूं अरण्य भवन अशोकापुरम मैसूर कर्नाटका दे विच, अरण्य भवन अशोकापुरम मैसूरू कर्नाटका दे विच, सिंपल याद रखांगे मैसूर कर्नाटका दे विच इसनूं बनाया गया। ठीक है जी, इस तो इलावा त्रिपुरा की गल करते हैं। त्रिपुरा द्वारा ईको फ्रेंडली बैम्बू कैंडल्स और दीवेज यूज़ किए गए वोकल फॉर लोकल कैंपेन के अंडर। दिवाली के लिए ईको फ्रेंडली कैंडल्स और दिए यूज़ किए गए त्रिपुरा द्वारा वोकल फॉर लोकल कैंपेन के अंडर इसनूं शुरू किया गया ताकि जिहड़े उत्थे दे रेसीडेंट्स ने उन्होंने कह सकते कि उन्होंने दिवाली भी अच्छी मनाई जा सके। ठीक है, तो मणिपुर द्वारा ही ऑयल पाम प्रोजैक्ट लॉन्च किया गया। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने, गवर्नर की गल करते हैं नजमा हेपतुल्ला ने, और ऑयल पाम प्रोजैक्ट लॉन्च किया गया है मणिपुर द्वारा कि ऑयल पाम की खेती की जाएगी मणिपुर के विच। जिस तरीके ने अपने हींग के बारे डिस्कस किया सी, तो लाहौल ते स्पीति ऑफ हिमाचल प्रदेश। उड़ीसा गौरमेंट की गल करते हैं तो सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सैसफुली प्रोग्राम, शॉर्ट फॉर्म के सांस प्रोग्राम उड़ीसा गौरमेंट द्वारा लॉन्च किया गया। सांस प्रोग्राम के अंडर बेसिकली की किया जाएगा कि निमोनिया के लिए लोगों को अवेयर किया जाएगा। तो सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सैसफुली रिसेंटली आप डिस्कस किया 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे ऑबजर्व किया गया, उस दिन इसनूं शुरू किया गया। ठीक है, सांस प्रोग्राम। नैक्सट करते हैं विच स्टेट और यूटी विल हैव अ यूनीक ई हेल्थ कार्ड इनीशिएटिव टू असैस गौरमेंट हॉस्पिटल्स नूं असैस करने के लिए एक यूनीक ई हेल्थ कार्ड इनीशिएटिव लॉन्च किया है। ई हेल्थ कार्ड इनीशिएटिव प्रोवाइड किए जाएंगे उत्थे दे लोकां नूं ताकि गौरमेंट जिहड़ी सर्विसिज ने हॉस्पिटल की सर्विसिज ने उन्होंने ईजली अवेल कर सकन और जिहड़े गरीब लोग ने वो उसनूं घट रेट पे या फिर फ्री दे विच भी अवेल कर सकणगे। ठीक है, किन्ना द्वारा शुरू किया गया है, दिल्ली गौरमेंट द्वारा शुरू किया गया। ठीक है जी, इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं होर भी कुछ न्यूज़ ने एक एमपी और आंध्र प्रदेश के रिलेटेड डिस्कस करांगे आप। सब तो पहले एमपी दी, तो एमपी के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने की करे एक रोड मैप लॉन्च किया है आत्मनिर्भर एमपी। बेसिकली रोड मैप का मतलब यह है कि इस दे विच डिफरेंट इनीशिएटिव दसे गए हैं कि असीं किस तरीके नाल एमपी नूं आत्मनिर्भर बनावांगे। आत्मनिर्भर किस तरीके नाल बनाए जाएंगे कि एजुकेशन के उत्ते काफ़ी ज़्यादा गौर की जाएगी, हैल्थ सैक्टर के उत्ते काफ़ी ज़्यादा गौर की जाएगी। इस तरीके नाल आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, उसनूं सैल्फ डिपेंडेंट बनाया जाएगा स्टेट नूं। ठीक है जी, आंध्र प्रदेश की गल करते हैं तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा डिस्ट्रिक्ट नूं वाटर कंजरवेशन के लिए अवार्ड दिता गया। वाटर कंजरवेशन के लिए आंध्र प्रदेश के कडप्पा डिस्ट्रिक्ट नूं अवार्ड दिता गया। हमने आप डिस्कस किया तमिलनाडु नूं बेस्ट स्टेट कैटेगरी दे विच रखा गया। ठीक है, सिमिलर तरीके नाल कडप्पा डिस्ट्रिक्ट नूं आंध्र प्रदेश के कडप्पा डिस्ट्रिक्ट नूं भी वाटर कंजरवेशन के लिए अवार्ड दिता गया। अज दे लई बस इन्ना ही।
आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।